Hello guys, welcome back to another audiobook of Class 12 Biology Chapter number 9 Strategies for Enhancement in Food Production। तो आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो है व्हीट एंड राइस। और टेंशन मत लो, जो प्रीवियस ऑडियो बुक थी ऑडियो बुक नंबर 2 वो वहीं तक थी जहाँ अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन पे ख़त्म किया था। ठीक है, इसके आगे अपन व्हीट एंड राइस, शुगर केन, मिलेट्स इसके बारे में इसी ऑडियो बुक में पढ़ने वाले हैं। और प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस भी इसी ऑडियो बुक में अपन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हीट एंड राइस। ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन। 2000 में यानी कि 1960 से लेके 2000 ईयर में जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन से सीधे 75 मिलियन टन पे पहुंच गया। While rice production went up from 35 million ton to 89.5 million ton. This was due to the development of semi-draft variety of wheat and rice। और ये मुमकिन हुआ semi-draft variety of wheat and rice की वजह से। Nobel laureate Norman A. Borlaug at International Center of Wheat and Maize Improvement in Mexico developed semi-draft wheat। और ये क्रेडिट जाता है नोबल लॉरेट और नॉर्मन ई बोरलेग को, जिन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट मैक्सिको में सेमी ड्राफ्ट व्हीट और राइस को डेवलप किया। In 1963, several varieties such as Sonalika, Kalyan Sona, which were highly yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt of India। ये जो सोनालिका और कल्याण सोना है, ये किसी हीरो हीरोइन के नाम नहीं है, ये मोस्ट फेमस व्हीट के नाम है जो कि इंडिया के बेल्ट्स में ग्रो करते हैं। Semi-draft rice wheat were derived from IRA developed at International Rice Research Institute, Philippines, and Toching native one from Taiwan. The derivatives were introduced in 1966. Later, better yielding semi-draft variety Jaya and Ratna were developed in India। और जया और रत्ना को इंडिया में डेवलप किया गया। शुगर केन। Saccharum barberry was originally grown in North India, but had poor sugar content and yield. Tropical cane grown in South India, Saccharum officinarum, had thicker stem and high sugar content, but did not grow well in North India. These two species were successfully crossed to get sugarcane variety combining desirable quality of high yield, thick stem, high sugar, and ability to grow in the sugarcane area of North India. Millets. Hybrid maize, jowar, and bajra have been successfully developed in India. Hybrid breeding have led to the development of several high-yielding varieties resistant to the water stress। ठीक है, ये कुछ जनरल बातें थी। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस की। A wide range of fungal, bacterial and viral pathogen affect the yield of cultivated crop species, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। Especially in tropical climate, crop losses can often be significant up to 20 to 30% or sometimes even total। और इसकी वजह से जो क्रॉप का लॉस होता था वो मोर देन या अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% होता था। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेट रेजिस्टेंट टू डिजीज एनहांस फूड प्रोडक्शन। और इस सिचुएशन में जो ब्रीडिंग और डेवलपमेंट थी कल्टिवेट्स की वो डिजीज रेजिस्टेंट और फूड की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए की गई थी। दिस ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द यूज ऑफ फंगिसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड्स। और इसकी वजह से हम बैक्टीरियोसाइड्स, फंगिसाइड्स का छिड़काव करने से भी बच जाते थे। Resistance of host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease। और host plant की resistance किसी भी पैथोजन की खिलाफ एक बहुत ही अच्छा साइन जो है दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो किसी भी पैथोजन को अपने अंदर डिजीज कॉज करने से रोक देती थी। And is determined by the genetic constitution of the host plant। Before breeding is undertaken, it is important to know about the causative organism and the mode of transmission। किसी भी ब्रीडिंग करने के पहले हमें ये पता लगाना ज़रूरी है जो क्रॉप हम ब्रीड करवा रहे हैं उसको किस चीज़ की डिजीज़ होती है और किससे डिजीज़ होती है। ठीक है। Some of the disease caused by fungi are rust, example brown rust of wheat, red rot of sugarcane, and late blight of potato. By bacteria, black rot of crucifer, and by virus, tobacco mosaic and turnip mosaic, etc. Method of breeding for disease resistance. Breeding is carried out by the conventional breeding technique,
The conventional method of breeding for disease resistance is that of hybridization and selection. जो मेथड है ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट की वो कुछ इस तरीके से है कि वो ब्रीडिंग टेक्निक्स से और कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन का यूज़ करते हैं प्रीवियस केस की तरह उसी का यूज़ करते हैं. Its steps are essentially identical to those for breeding for any other agronomic character such as high yield. The various sequential steps are screening germplasm for resistant source, hybridization of selected parents, selection and evaluation of hybrid, and testing and release of new variety. वही सब पॉइंट्स जो अपन ने पिछले ऑडियो बुक में समझे थे. Some crop variety bred by the hybridization and selection disease resistant to fungi, bacteria and viral disease are released. जैसे कि wheat की वैरायटी है हिमगिरी जो कि लीफ और स्ट्रिप रस्ट से अपने आप को रेजिस्ट करती है. ब्रेसिका एक क्रॉप है जिसकी वैरायटी है पूसा स्वर्णिम यानी कि करण राय. ये है वाइट रस्ट के रेजिस्टेंस. फिर है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी. इसकी वैरायटी पूसा शुभ्रा और पूसा सोनबाली के 1. ये ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से अपने आप को बचा लेती है. फिर एक है क्रॉप काउपी. ये एक वैरायटी है पूसा कोमल की जो कि अपने आप को बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाती है. और एक है चिली पूसा सदाबहार जो कि चिली मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ साथ लीफ कर्ल से अपने आप को बचा लेती है. Conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease-resistant genes that are present and identified in various crop variety or wild relatives. Inducing mutation in plant through diverse means and then screening the plant material for resistance sometime lead to desirable gene being identified. यानी कि म्यूटेशन करके स्क्रीनिंग करके और कुछ देर के लिए प्लांट को किसी बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस बना के हम डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करके प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. प्लांट्स हैविंग दिस डिजायरेबल कैरेक्टर कैन देन बी ईदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज इन ब्रीडिंग. और इस टाइप के प्लांट्स को हम या तो डायरेक्टली मतलब जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं या ब्रीडिंग करा सकते हैं. अदर ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज आर सिलेक्शन अमंग सोमेक्लोनल वेरिएंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. और जो दूसरी टाइप की ब्रीडिंग मेथड्स हैं उसमें हम सोमेक्लोनल वेरिएंट्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं. म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन. जैसे कि हमने चैप्टर 5 और 7 में भी देखा है. चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन में हमने म्यूटेशन देखा है. म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी और उसका स्टेटमेंट क्या है म्यूटेशन की थ्योरी का वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. Resulting in the creation of new character of trait not found in the parental type, it is possible to induce mutation artificially through use of chemical and selecting and using the plant that have the desirable character as a source and breeding. This process is called mutation breeding. In mung bean, resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by mutation. जो मग बीन है उसके अंदर भी म्यूटेशन के जरिए ये चेंजेस किए गए थे. Several wild relatives of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistant character but have very low yield. Hence, there is need to introduce the resistance gene into the high yielding cultivated varieties. Resistance to yellow mosaic virus in भिंडी जिसका साइंटिफिक नेम है Abelmoschus esculentus was transferred from a wild species and resulted in a new variety of A. esculentus called Parbhani Kranti. All the above example involve source of resistant gene. जितने भी एग्जाम्पल है ये सब जीन रेजिस्टेंट जीन के सोर्स पे इन्वॉल्व हैं. That are in the same crop species which has to be bred for disease resistant or in a related wild species. Transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant followed by the selection. अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. ये तो डिजीज हो गई. अब इंसेक्ट से कैसे ये समझ लेते हैं.
Another major cause for large scale destruction of crop plant and crop produce is the insect and pest infestation. देखो अभी भी हैं जो इस काम को करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें अब जैसे अब एक है अपना कौन एक प्लांट है जिसको अपन ने RNAi इंटरफेरेंस की हेल्प से क्या किया है, उसको मॉडिफाई किया है ताकि कोई इंसेक्ट अगर आके उसको खाए तो उसकी गट में जाके वो जो रेजिस्टेंट जीन है वो पोर्स क्रिएट कर दे और वो इंसेक्ट वहीं मर जाए। ठीक है, वो कौन सा प्लांट है ये बायोटेक का चैप्टर पढ़ने के बाद तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, बायोटेक का एप्लीकेशन वाला। ठीक है, चलो। Another major cause for large-scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation. Insect resistance in host crop plant may be due to morphological, biochemical or physiological characteristics. Hairy leaves in several plants are associated with the resistance to insect pests. Example, resistant to glyphosate in cotton and cereal leaves beetle in wheat. In wheat, solid stem lead to non-preference by the stem swallowfly and smooth-leaved and nectarless cotton variety do not attract bollworms. High aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance to maize stem borer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Breeding method for insect pest resistance involve same step as those for any other agronomic trait such as yield or quality and are as discussed earlier. Source of resistance gene may be cultivated varieties, germ plasm collection of the crop or wild relatives. Some release crop variety breed by hybridization and selection for insect pest resistance are given in table. अब तुम ये टेबल रीड कर लेना। अब अपन बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। More than 840 million people in the world do not have the adequate food to meet their daily food and nutrition requirement. Far greater number 3 billion people suffer from macronutrient, protein and vitamin deficiency or hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruit, vegetable, legume, fish and meat. Diet lacking essential micronutrient, particularly iron, vitamin A, iodine and zinc, increase the risk for disease, reduce lifespan and reduce mental abilities. अब ये बात तो सबको पता है, कम खाना मिलेगा या कम खाना खाएंगे तो कम न्यूट्रिशन मिलेगा और कमज़ोर होते जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो वेजिटेरियंस है उनके लिए तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि उनको प्रोटीन वगैरह ज़्यादा अच्छे से मिल नहीं पाता। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते भी हैं। ठीक है, बट अगर वेजिटेरियंस की बात करें तो उन्हें प्रोटीन, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल कंटेंट ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन, breeding crop with high level of vitamin and mineral or high protein and healthier fat is the most practical mean to improve public health. यानी कि एक ऐसी क्रॉप का इन्वेंशन करना जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, हेल्थियर फैट्स और विटामिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी पब्लिक की मीन के लिए। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग, और इस ब्रीडिंग को अंडरटेकन किया गया है इस ऑब्जेक्टिव से ताकि हम इम्प्रूव कर सकें प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल कंटेंट एंड क्वालिटी. In 2000, maize hybrid that had twice the amount of the amino acid lysine and tryptophan compared to existing maize hybrid were developed. Wheat variety Atlas 66 having high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat. It has been possible to develop an iron fortified rice variety containing over 5 times as much iron as in commonly consumed varieties. The Indian Agricultural Research Institute in New Delhi has also released several vegetable crops that are rich in vitamin and mineral. Example, vitamin enriched carrot, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourds, batua, mustard, tomato, iron and calcium enriched spinach and batua, and protein enriched beans, broad, lavla, French and garden peas. इसके अलावा एक और ऐसा वेजिटेबल है जिसका अपन ने हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाया है, विटामिन ए का,
जो कि है गोल्डन राइस। बीटा कैरोटीन नाम का एक जीन होता है, मतलब बीटा कैरोटीन है जिसको अपन ने राइस के अंदर मॉडिफाई करके उसको इंट्रोड्यूस किया है। असल में हुआ ये था कि कई नॉर्थन और सदर्न नहीं, ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ राइस खाते हैं और उनको न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना राइस में ही न्यूट्रिशन और विटामिन की जो इम्प्रूवमेंट है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, यानी कि जो डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए राइस को ही मॉडिफाई कर दिया जाए। तो उन्होंने डैफोडिल प्लांट जो होता है उसके अंदर एक जीन होता है बीटा कैरोटीन, उसको लेके जो वहाँ पे पाई जाने वाली कॉमन राइस वैरायटी थी जो कि वहाँ के लोग खाते थे उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया। और ये राइस हाईली न्यूट्रिटिव और हाईली एनरिच था विटामिन और मिनरल्स में। ठीक है, ये भी अपन पढ़ेंगे किसमें, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP की। Conventional agriculture production of cereal, pulse, vegetable, fruit, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. Shift from grain to meat diet also create more demand for cereal as it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. More than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition. One of the alternate sources of protein for animal and human nutrition is single cell protein. Microbes are being grown on an industrial scale as a source of good protein. कुछ माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो किया जाता है जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। ब्लू ग्रीन algae like spirulina can be grown easily on material like wastewater from potato processing plant, straw, molasses, animal manure and even sewage. जैसे कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है स्पाइरुलिना, इसको पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स में स्ट्रॉ से, मोलासेस से, एनिमल मैन्योर की हेल्प से, इवन सीवेज जो होता है उसकी हेल्प से ग्रो कराया जाता है लार्ज क्वांटिटी में। और इसको फूड की तरह, क्योंकि ये प्रोटीन मिनरल फैट में कार्बोहाइड्रेट विटामिन में रिच होता है, तो इसे फूड की तरह सर्व किया जाता है। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी कम होता है। Certain bacterial species like Mythophilus mythelotrophus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 ton of protein. और ये जो बैक्टीरिया है ये 25 टन ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। Fact that edible mushrooms are eaten by many people and large-scale mushroom cultures growing industry make it believable that microscopic fungi too would become acceptable as food. और यहाँ तक कि कई लोग होते हैं जो आज की डेट में मशरूम सूप्स वगैरह पीते हैं और मशरूम को खाते हैं, तो इसीलिए मशरूम को भी एक अच्छे फूड की मतलब विटामिन या मिनरल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आजकल तो मशरूम सूप वगैरह लोग रोज़ मतलब डेली नहीं, हफ्ते में एक आध बार लेते ही लेते हैं कुछ लोग, बाकी तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दाल भात पे टिकी हुई है, विच इज़ मच मोर गुड, क्योंकि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसी के साथ अपना सिंगल सेल प्रोटीन वाला टॉपिक विथ द प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक खत्म होता है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक दैट इज टिश्यू कल्चर विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका तुम्हें अपडेट जल्दी मिल जाएगा। और जैसे कि तुम्हें पता है 10th से 12th तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए तुम हमारे चैनल हिंदी सर तक आप विजिट कर सकते हो, जिसमें एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है मेरे ही नाम की विक्रमादित्य राव, जहाँ जाके तुम्हें वीडियो, ऑडियो बुक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे कि तुम्हें पता है कि 11th और 12th की मैंने ऑलरेडी ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में अभी तक मैक्स टू मैक्स पोर्शन कवर हो गया है, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और ह्यूमन फिजियो की अगर बात करें तो बॉडी फ्लूइड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज एंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन। उसके अलावा लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब डल चुका है। तो और उसी के साथ जो 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट है उसमें फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जेनेटिक वाला पार्ट भी डल गया है।
सिर्फ मॉलिक्यूलर बेसिस का बचा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, होम सेफ, बाय। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जहाँ पे तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 70 फॉलोअर्स ऑलरेडी हो रखे हैं, यहाँ 100 कर दो और सब्सक्राइबर्स भी 100 करा देना। यहाँ पे कई वीडियोस मैंने डाल दिए हैं तो उसको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक विद न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, होम सेफ, बाय।